हाँ जी, ਆਪਾਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ 17 ਅਗਸਤ ਸ਼ਿਫਟ 2 ਦਾ ਜੋ ਮੈਥ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਮੈਥ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਹੈ, ਇਫ ਟੂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਵਨ ਵਿਦ ਸਪੀਡ ਆਫ 12 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਲੈਂਥ ਆਫ 100 ਮੀਟਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ 100 ਮੀਟਰ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ 12 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ट्रेन है, ਉਹਦੀ स्पीड है 18 मीटर पर सेकेंड, ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ 90 मीटर। मतलब वो ट्रेन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ट्रेन ਦੀ स्पीड ਲੈਂਥ ਹੈ 90 मीटर, ਇਹਦੀ स्पीड है 18 मीटर पर सेकेंड। How much time will it take one train to overtake the other if both the train starts such that engines are at the same position in the beginning? ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ट्रेन ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਵਰ ਕੀਤੀ 100 ਮੀਟਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਵਰ ਕੀਤੀ 90 ਮੀਟਰ। ਦਾ ਮਤਲਬ 190 ਮੀਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ? ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ 6 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 190/6। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਗਲਤ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੈ, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन गलत है जी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है जी, इफ x प्लस 2 इक्वल टू 4x माइनस 10 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। बिल्कुल आसान है जी, ए एक्स माइनस हो जाएगा, इधर बन जाएगा 3x, 10 उधर बन जाएगा 12, x का आ जाएगी 4 थे। ऑप्शन थर्ड की है जी सही आंसर। आगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। एक ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 5.3, नीचे लिखा हुआ है जी 4 प्लस 3 इंटू 0.6 बन जाऊगा 1.8, ये बन जाऊगा 2.2, मतलब 1/5 0.2 बन जाऊ 2.2 बन जाऊगा। तो इन्हों कैंसिल करांगे। ठीक है जी, पॉइंट ना पॉइंट कैंसिल हो जाऊगा, 2 तो कैंसिल करांगे 9/11 आ जाऊगा, ये बन जाऊगा 5.3। एलसीएम लैन तो बाद 44 + 9 53/11, 11 ऊपर चल जाऊगा तो इन्हों कैंसिल करके बन जाऊगा 11/10 बन जाऊगा। ठीक है जी, उरे 10 आ जाऊगा तो 11/10 बन जाऊगा। मतलब इस ब्रैकेट में आप सॉल्व किया 11/10 आ गया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। 5 ਤੇ 2.5 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 12.5 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 9 ਮਾਈਨਸ 1.6। ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਹੈਗਾ 1/5 0.2 ਹੁੰਦਾ, 3 ਮਾਈਨਸ 1.5 मतलब 0.2, ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 2.8। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 4/7 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 12.5, 9 7 63 ਮਾਈਨਸ 4 59/7, 7 ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾ ਕੇ ਨੀਚੇ 10 ਲਗਾ ਦਈਏ, 125 ਗੁਣਾ 7, 125 ਗੁਣਾ 7 नीचे 590, 700 ਇਹ ਪੂਰਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੇ 700 नीचे आ जाऊगा जी 700, मतलब 700 पूरा ਤੇ 175 875 ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਊ 875। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 11 × 59/875। ਤਾਂ 59 ਨੂੰ 11 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 590 ਤੇ 59, ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 649 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 875। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ क्वेश्चन नंबर जो नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 53 आप कर चुके, 54 देखा। विच वन इज इक्वल्स टू 5। इन्हें जो 5 के किहड़ा इक्वल है, यदी वैल्यू है 1/20, ये बन जाऊगा जी 13, ये बन जाऊगा -4 + 1 -3। तो ऑप्शन डी बचती है जी, ये वैसे भी ठीक है जी, ये पूरे 5 बनता है। अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 55, इस चीज़ को सॉल्व करना है जी। तो आप एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सब तो पहले लिखा हुआ है 144, 2 बार लिखा हुआ है,
डिवाइड बाय 48 करांगे इंटू करांगे जी आप 60। ठीक है जी, इस ब्रैकेट में सॉल्व किया बाहर की अपने को 72 है, इसनों आप एज इट इज रख के इतने लिखते हैं 8x। तो उरे कैंसल करांगे जी 3 आ जाऊगा। ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 144 इंटू 3 इंटू 16। ਇਹਦੇ डिवाइड ਲੈ ਜਾएंगे 72, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ 8x। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਰੇ ਵੀ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ, x ਆ ਜਾਊਗਾ 12। ਲਓ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆਪਣਾ ਆंसर है। ਇਹ ਸੀ क्वेश्चन नंबर 55। नेक्स्ट देखो जी क्वेश्चन नंबर 66। The HCF of 2201,450। देखो जी सिंपल जी गल है, HCF होंगे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन्होंने डिवाइड करे। तो आप ऑप्शन नाल चेक कर लें। देखो जी 60 तो कैंसल नहीं होंगे, पहली ऑप्शन गलत है। 15 तो 220 नहीं कैंसल होंगे, ये भी गलत है। 64 तो 220 कैंसल नहीं होंगे, 64 तो कैंसल नहीं होंगे जी। तो करके ऑप्शन डी बच गई सिर्फ 50। अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 57। If sum of two number is 40 and HCF and LCM of these number are 8 and 48, तो अपने तो की पूछ रहे हैं ये, then find the reciprocals of their number। कहना दो नंबर का सम 40 है, उन्होंने HCF ते LCM गिवन है 8 ते 48। तो जी HCF 8 है तो नंबर की होंगे 8x इंटू 8y होंगे। एक नंबर 8x है, एक नंबर 8y है। तो रूल के अकॉर्डिंग दोनों नंबर की मल्टीप्लाई HCF ते LCM की मल्टीप्लाई होंगी है। इट मीन ये कैंसल हो गए, एक्स वाई की वैल्यू आ गई 6, एक्स वाई 6 आ गई तो अपने नंबर्स ने 8x तो 8y। तो हुण x तो y इत्थे होने चाहिए ने को प्राइम। तो जे आप x नूं 1 लैके चलते हैं तो y नूं 5 लैके चलते हैं तो अपने को 8 आ जाऊगा, ये 40 बन जाऊगा। तो इन्हों का सम 40 बनना चाहिए, मतलब कि एक नंबर 8 आ गया, एक नंबर 40 आ गया, बट इन्हों का सम 40 नहीं बनता। तो इन्हों लैके चलांगे आप 2 ते 3, x नूं 2 तो ये नंबर बन जाऊगा 16, y बन जाऊगा 24। देखो जी इन्हों का सम भी 40 आ रहा है। ठीक है जी, इट मीनस अपने जो दो नंबर ने कि ने 16 ते 24। इन्हों का आप की करना है, फाइंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। 1/16 प्लस 1/24 करना है जी, अपने को आंसर आ जाऊगा 24 प्लस 16 ये बन जाऊगा 40, नीचे आ जाऊगा 16 इंटू 24। 4 से कैंसिल करांगे 10 आ गया जी, उरे 6 आ गया, उरे 5 आ गया, उरे 3 आ गया। तो आंसर बन जाऊगा 5/48, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है जी। अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है जी अपने को, ऑन डिवाइडिंग 2121 एज वेल एज 624 बाय अ 3 डिजिट नंबर। कहना एक दो नंबर ने 2121 ਤੇ 624, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 3 ਡਿजिट ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ n, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਮ ਰਿਮਾਈਂਡਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਸੇਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਮ ਆਫ ਦ ਡਿजिट्स ਆਫ ਦ n। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ n ਦੇ ਜੋ ਡਿजिट्स ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ। देखो जी मैं की सपोज करदा, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। मैं करदा भी जो नंबर मेरा n है, मैं 624 ਨੂੰ n ਤੇ डिवाइड करता ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ आ गया कुछ ना कुछ, मेरे को क्वेश्चन आया होगा ਤੇ क्वेश्चन ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ qn प्लस r ਦੀ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਮੇਰੇ को आंसर ਆਊਗਾ। फिर मैं 2121 ਨੂੰ n ਤੇ डिवाइड ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ q2n प्लस r ਦੀ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ आंसर ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ n कॉमन आ जाऊगा, तो इतने ब्रैकेट च आ जाऊगा q माइनस q2 माइनस q आ जाऊगा, या फिर q माइनस q2 आ जाऊगा। तो मतलब कि ਜਿਹੜਾ मैं जो मैं नंबर का डिफरेंस लेना इस चीज़ का, ਇਹਦਾ डिफरेंस मेरा जो है वो भी मेरा n ਤੇ ਉਹ मेरा डिविजिबल होगा। देखो जो रिमाइंडर सेम बचता हो तो जो नंबर होगा वो नंबर इन्हों दोहों के डिफरेंस को एग्जैक्ट डिवाइड करूगा। तो इट मीनस 2121 ਤੇ 624 का जो डिफरेंस है वो पहला मैं निकाल लूँगा, उरे 97 आ जाऊगा, 121 चो 24 घटावांगे 97, उरे आ जाऊगा 14। तो 1497 अपने को बन जाऊगा। मैं इस चीज़ को सॉल्व करूँगा, ये मेरा कैंसल हो रहा है जी, 2 तो कैंसल हो रहा है, 3 चेक करदा मैं, ये मेरा हो रहा है कैंसल 3 ते, उरे आ जाऊगा 3 चौक 12, 29, 3 आया 27, 3 आया 27, 499 आई थिंक इट इज़ ए प्राइम नंबर। ਤਾਂ ਇਹ 499 ਤੇ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋਊਗਾ, मतलब कि मेरे को ਜਿਹੜਾ ਵੀ 3 ਡਿजिट ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 499। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 2121 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਸੇਮ ਆਊਗਾ, 624 ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਸੇਮ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਨਿਕਾਲਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਸਮ।
ये आ जाएगा 22। लो जी ऑप्शन थर्ड अपने को बिल्कुल सही आंसर। आगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 59। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਕਟ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਰੇ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 12/9, मतलब कि ब्रैकेट सॉल्व करके आ गया 17/9। फिर मैं इस पोर्शन को सॉल्व करूंगा ऑफ पार्ट में, ऑफ लिखा होया था 4/17, ये कैंसिल हो जाऊगा, ये बन जाऊगा 4/9। मतलब कि उरे तक मेरे को सारा आंसर कितना आ गया 4/9 आ गया। ਹੁਣ मैं 4/9 ਨੂੰ डिवाइड करना है ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 and 1/3 ਨਾਲ, ਇਹ बन जाऊगा 7/3। तो मैं उल्टा कर दूंगा, ये बन जाऊगा 3/7। उरे 1 आ गया, उरे 3 आ गया, आंसर आ गया जी 4/21। उरे तक सॉल्व हो गया मेरा। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ मैं सॉल्व करूंगा 4 1 ज़ा 4 + 1 5, 5/4 ਇਹ ਉਲਟਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 4/5। ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 5/4। ਇਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਬਚ ਗਿਆ 5/21। ਤਾਂ 5/21 ਚੋਂ 1/21 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਚ ਜਾਊਗਾ 4/21, ऑप्शन ए सही है। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ क्वेश्चन नंबर 60। ਇਹ ਕੁਝ क्वेश्चन जो है वो पंजाबी लैंग्वेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ मैं ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ क्वेश्चन नंबर 60 ਹੈ ਜੀ। ਮੋਹਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ 6% ਸਾਲਾਨਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਤੇ ਇੱਕ ਰਕਮ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 0.5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ 1080 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਉਹ 6 ਸੀਗੀ, ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂ 6.5 ਹੋ ਜੂ, ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਪਰਸੈਂਟ ਵੱਧ ਜੂ 7 ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਵੱਧ ਜੂਗੀ 7.5 ਹੋ ਜੂ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ मतलब ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 6% ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ 6.5% ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ 7% ਮਿਲੂਗਾ, ਫਿਰ 7.5% ਮਿਲੂਗਾ। मतलब कि टोटल किन्ने परसेंट इंटरस्ट मिला जी ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਨਿਕਾਲ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 27% ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मतलब कि ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ 27% ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 1080 ਹੈ, ठीक है जी। तो मैं डिवाइड बाय 100 करूँगा जी। उरे 27 चौक 108, तो 40 बच गया। प्रिंसिपल कितना आ गया 40 × 100 4000। लो जी डी आंसर आपने को है। अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 61। ए ਅਤੇ बी ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 16 ਦੇ 7 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇ ए ਦੀ ਤਨਖਾਹ 20% ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ 6288 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ बी ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। देखो जी ये ए की तनख्वाह 20% ਵਧੀ है तो इन्नी होगी, मतलब ए की जो सैलरी है वो 5 ਤੋਂ 6 होगी, तो 6 की वैल्यू अपन गिवन है 5 की निकाल सकते हैं, 6 की वैल्यू गिवन है 6288। तो आप 1 की वैल्यू निकाल लें, जिहड़ा की आ जाऊगी ये सैलरी आ जाऊगी ए की, तो 1 की वैल्यू आ जाऊगी 6 0 6 चौक 24 4 8 6 8 48, तो 1 की वैल्यू आ गई, ये मेरे को की आ गई ये सैलरी ऑफ ए आ गई। मतलब कि ये वैल्यू की आ गई 16 की। जे सैलरी ऑफ ए 1048 है तो आपने बी की वैल्यू पता करनी है, तो आप 1048 ਨੂੰ 16 ਤੇ डिवाइड करांगे, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ कैंसिल कर देना जी 4 ਤੇ, 4 दूनी 8 2 4 6 आ गया, उरे आ गया 2 आ गया 262, नीचे आ जाऊगा जी 4। तो मैंने वैल्यू पता करनी है 7 की, ये मेरे को की वैल्यू आ गई 1 की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। क्योंकि मैं 16 की वैल्यू 1048, 1 की वैल्यू 1048/16 होगी, 262/4 मैं मल्टीप्लाई कर देना जी 7 ਨਾਲ, मतलब कि मेरा फ्रैक्शन च आंसर आऊगा। तो हम मैं आंसर पूरा पूरा ਇਹਦਾ कैलकुलेट करूँगा, ये आ जाऊगा मेरे को जे मैं 4 ਤੇ कैंसिल करदा 4 × 6 = 24, पिछे बच गए 22, 4 × 5 = 20, 2 बच गया, पिछे 0 लग गई 5, मतलब मेरे को 65.5 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 5 ਆंसर ਆਊਗਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕरूँ, मतलब लास्ट ਵਿੱਚ 5 पक्का होगा जी। तो मेरे को आंसर ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, जो भी आंसर आऊगा, सॉरी ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, जो मेरे को 1 की वैल्यू आई सी
मैंने उरे 5 की वैल्यू नाल करनी सी कैलकुलेट, मतलब कि फिर मेरे को सैलरी ऑफ ए आऊगी, मतलब कि 1048 गुणा 5 आऊगी जी, ये बन जूगा 5240। तो ये मेरे को 16 की वैल्यू आई है, 5240 डिवाइड बाय 16 इंटू 7 मेरे को आंसर आऊगा। तो मैंने 4 ते कैंसल करता, 4 आ गया, इनू 4 ते कैंसल किया, 13 चौक 52 आ गया, पूरे 10 आ गया। हुण मैंने 2 ते कैंसल कर देना जी, 6 11 बच गया, 2 5 10, 2 5 10, पूरे 2 आ गया। तो इनू मल्टीप्लाई करूँगा जी मैं 7 नाल, 655 नूं 7 नाल 4201 बन जूगा, 350 ते 35, 385 एक बन जाए, तो ये बन गया मेरे को 4585। ਇਹਦਾ मैं हाफ कर दूंगा, तो मेरे को ये ऑप्शन आ जाऊगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है जी, अप्रोक्सीमेट नहीं मतलब पूरी वैल्यू आऊगी। लास्ट जो 5 है तो मेथों इस चीज़ तो श्योरिटी है कि ऑप्शन ए बनूगी जी। अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 62। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 62 बहुत ईजी है जी। इफ एक्स स्केयर प्लस 11x प्लस 30 फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। तो आप जरूर ये ऑप्शन चेक करेंगे जी। देखो पहला -5 है, -5 है, -6 है तो 6 5 है, तो ज़्यादातर -5 वैल्यू आ रही है। तो आप एक्स की वैल्यू पुट करके देखते हैं। सब तो पहला आप एक्स की वैल्यू पुट कर देने -6, क्योंकि ये काफ़ी सारे ऑप्शन है। तो -6 पुट करा बन जूगा जी 36, -60 प्लस 30 तो ये एग्जैक्ट 0 बन जू, मतलब कि -6 तो यदा फैक्टर है। तो जो -6 फैक्टर है, ए ऑप्शन कैंसल होगी जी, तो डी ऑप्शन कैंसल होगी। हुण -5 का चक्कर है, -5 चेक कर लेने, 25 -55 प्लस 30, तो -5 ਇਹਦਾ फैक्टर है, मतलब कि सैकेंड ऑप्शन अपना आंसर है। ठीक है जी, इन्ना ही काम सी इस क्वेश्चन के। अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 63। फाइंड द अप्रोक्सीमेट मीन प्रपोर्शन बिटवीन 7.58 एंड 98.2। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ मीन प्रपोर्शनल पता करना अप्रोक्सीमेट। तो मीन प्रपोर्शनल होंगे दोहां की मल्टीप्लाई का अंडर रूट, क्योंकि मीन प्रपोर्शन की होंगे जिमें एक वैल्यू है, एक बी है, एक ये सेंटर च वैल्यू ले लेंगे आप बी। तो मतलब 7.5 ओवर बी इक्वल टू बी ओवर 98.2 ਦੀ इक्वल होणगे। तो उरे आप बी की वैल्यू फाइंड करनी है, जी कितनी आ जाऊगी 7.5 ਤੇ 98.2 का अंडर रूट। तो हुण आप इस चीज़ को सॉल्व करते हैं जी। तो देखो ये अप्रोक्सीमेट कितना बनता है, जो आप अप्रोक्सीमेशन लाइए इनू आप 100 मान लेंगे, क्योंकि अप्रोक्सीमेट पता करनी है जी अपन फिर की दिक्कत है। चलो पहले आप 98 मान लें, इनू आप मान लें कि 8 मान लें। तो हम देखो 98 इधरों तो अपने को 2 बाहर आ गया, तो रह गया 49, ये बच गया जी 16, 4 ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 7, 7 × 4 28, तो अप्रोक्सीमेट 28 के नेड़े आऊगी। और ऑप्शन 27 है गली जी अपने को नेड़े है, तो ऑप्शन ए अपना आंसर है। बाकी ऑप्शन ही बहुत दूर दूर ने। नैक्सट देखो जी क्वेश्चन नंबर 64। किन्ने प्रतिशत की सालाना दर ते एक धनराशि 15 साल में दुगनी हो जाएगी, मतलब कोई प्रिंसीपल किन्ने साल 15 साल की 15 साल डबल हो जाएगी, रेट किन्नी होगी। तो देखो जी मतलब वैल्यू 1 तो 2 बन रही है, मतलब डबल होने का मतलब यही है कि एक ऊपर एक इंटरस्ट मिलेगा, मतलब कि 100% इंटरस्ट है। तो जो 100% इंटरस्ट मिलता है तो एक साल किन्ने इंटरस्ट मिलेगा, 100/15% इंटरस्ट मिलेगा, मतलब कि ऑप्शन सी आंसर है जी। सॉल्व करके चेक कर सकते हो, 20/3 आ जाएगा। ठीक है जी, सी ऑप्शन है। अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 65। वो सब तो छोटी संख्या पता करो जो 7 तक घटाने ते 18, 28 ਅਤੇ 36 ਨਾਲ पूरी तरह भाग हो सके। वो छोटी संख्या पता करनी है जो 7 तक घटाने ते 18, 28 ਤੇ 36 ਨਾਲ पूरी तरह भाग हो सके। मतलब वो चो 7 माइनस करना अपने। पहला आप की करते हैं, इन्हों का एलसीएम पता करते हैं क्योंकि वो संख्या पता करिए जी 18, 28 ਤੇ 36 ਨਾਲ भाग होंगी है। तो देखो 18 ਤੇ 36 का एलसीएम का कितना आ गया, 36 आ गया। तो मतलब आप सिर्फ पता करना 28 ਤੇ 36 का। ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ जी 7 × चलो ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ जी 4 × 8, ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ 4 × 9। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 नहीं है, तो आंसर आ जाऊगा 4 × 8 × 9, ये एलसीएम बन जाऊगा।
9 7 63 9 8 72 72 ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 2 ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ 28 ਤੇ 36 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 36 ਐਲਸੀਐਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 4 into 7, ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ 4 into 9, ਤਾਂ ਉਰੇ ਇੱਕ 7 ਘੱਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 7 ਚੌਕਾ 28, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 9 7 63, 63 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, 63 ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ 126 ਦੁੱਗਣਾ 252, ਮਤਲਬ ਕਿ 252 ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 7 ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੇ 252 ਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ? ਸੀ 259। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 66। क्वेश्चन नंबर 66 है जी, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। बहुत ईजी है जी, ਇਹਦਾ आंसर ਹੁੰਦਾ 6a²। ਤਾਂ a ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 12, 12 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 12 ਗੁਣਾ 12 144 ਗੁਣਾ 6, 6 ਚੌਕ 24 ਹਸਲ पे 2, 6 चौक 24 ਤੇ 2 26, 2 6 6 ਤੇ 2 8, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है जी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 67। A cylindrical vessel 80 centimeter in diameter is partially filled with liquid A. A sphere having radius 30 centimeter is dropped into the vessel. To what further height will the liquid in the cylinder rise? देखो जी क्वेश्चन की एक सिलेंडर है जी अपने को ਜਿਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ 80 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੋ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 40 ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਫਿਲ ਕਰਤਾ, ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਲਿਕੁਇਡ, कुछ मतलब लिक्विड फिल करता। स्फीयर हैविंग रेडियस 30 सेंटीमीटर इज ड्रॉप, एक 30 सेंटीमीटर रेडियस का स्फीयर ड्रॉप करता है। टू वट फर्दर हाइट विल द लिक्विड इन द सिलेंडर राइज, तो कहना जो सिलेंडर के लिक्विड है कितना राइज कर जूगा। देखो जी जिन्ना वॉल्यूम, मान लो लिक्विड ने इन्ना वॉल्यूम घेरिया होया सीगा, ठीक है जी, इन्ना लिक्विड ने वॉल्यूम घेरिया होया सीगा, तो जिन्ना ये वॉल्यूम होगा मतलब कि सिलेंडर जिन्ना वॉल्यूम घेरूगा, देखो जी यदि मान लो हाइट एच हो, ठीक है जी, तो ये वॉल्यूम कितना हो जाऊगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाऊगा। पाई आर स्क्वायर कितनी है 40 है, तो बन जाऊगा 1600 एच। तो मतलब कि इन्ना वॉल्यूम घेरिया होगा जी। जो आप सिलेंडर मतलब ये आप सफीयर सिट देंगे, सफीयर की रेडियस कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो वह वॉल्यूम कितना हो सफीयर का 4/3 पाई आर क्यूब कितनी है 30 है, 30 30 30, तो इन्ना वॉल्यूम सफीयर रोक लूगा। तो हुण इन्ने वॉल्यूम नूं किन्नी, हुण देखो जी इन्ना वॉल्यूम सफीयर ने कवर कर लिया, तो हुण जो अपने कोल सरफेस होगा, ठीक है जी, ਉਹਦਾ सरफेस एरिया किन्ना, मतलब ਉਹਦੀ इस चीज़ का एरिया किन्ना है। मान लो लिक्विड ने शेप बनाई हुई है, ਇਹਦਾ एरिया किन्ना होगा जी पाई आर स्क्वायर होगा। आर कितनी है जी 40 है, मतलब कि 1600 बन जाऊगा। तो हुण किन्नी हाइट ते जाके वॉल्यूम मतलब किन्ना उपर जाऊगा वॉल्यूम। देखो जी की हुंदा जो आप जिन्ना वॉल्यूम उन्हें जगह घेरी है उन्ना वॉल्यूम उपर हो जाऊगा। जिन्नी जगह सफीयर ने घेर ली, जिन्ना वॉल्यूम इन्हें घेर लिया उन्ना ही उपर हो जाऊगा, उन्ना वॉल्यूम होगा, तो इन्ना वॉल्यूम इहदा उपर हो जाऊगा। तो हुण आपां चैक कर लैंदे हैं जी, पाई नाल पाई कैंसल हो जाऊ, उरे आ जाऊगा 10, उरे 1600 1600 नीचे आ जाऊगा 1600, दोनों जीरो कैंसिल हो गई जी, आ कैंसिल हो गई जीरो, आ कैंसिल हो गई, नीचे 4 आ गया, तो पीछे बच गया जी 30 गुणा 3 90/4 आंसर आऊगा इसका, मतलब कि 22.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन 3 आंसर है, क्योंकि जिन्ना वॉल्यूम जिहड़ा सफीयर घेरूगा उन्ना वॉल्यूम उपर जाऊगा, तो ਉਹਦੀ सरफेस तो यही रहूगा ना, ਉਹਦਾ हाइट कितनी उपर जाऊगा वो आप चेक कर लीजिए। तो 22.5 सेंटीमीटर आंसर है। अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 68। What is the sum of the digits that a perfect square can never have its at its unit place? कहना किहड़ा डिजिट ਇਹਦੇ यूनिट प्लेस ਤੇ नहीं हो सकता। देखो जी किसी दे कोई भी स्क्वायर है ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, ठीक है जी,
7 नहीं हो सकता, ये 4 तो हो नहीं सकते, तो अपने को 2 ते 8 तो वैसे ही कैंसल हो गया। पिछे बच गया जी बी 20 बच गया तो ऑप्शन डी बच गई। ਹੁਣ देखो किसी चीज़ के पिछे 0 तो हो सकती है पर 0 भी 2 हो सकती ने। What is the sum of the digits that a perfect square can never at its unit place? What is the sum of the digits? What is the sum of digits that a perfect square can never have at its units place? That a perfect कोई perfect square मतलब क्वेश्चन की है जी, क्वेश्चन ने यही चीज पूछी है इन्होंने। what is the sum of the digits that कहना उस digits ਦੇ ਦਾ sum ਕੀ ਹੈ that a perfect square can never have its unit place। अच्छा ठीक है जी, कहना कोई परफेक्ट स्क्वायर है ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं, 4 हो सकता, 5 6 हो सकता, 7 हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9 हो सकता, 0 हो सकती है। तो इन्हों का आप सम करना है जी, कितना है 2 3 5 7 12 ਤੇ 8 20 आंसर है जी। मतलब कि ਜਿਹੜੇ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਸੇ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 20। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 69 है जी। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का जोड़ 15 है। 2 अंकों की कोई संख्या ਉਹਦੇ अंकों का जोड़ 15 ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਉਲਟ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦਾ 1/3 9 ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, 2 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕ ਜੋੜ 15 ਹੈ ਤਾਂ 8 7 15 9 6 15 ਇਹ ਸਾਰੇ 15 15 ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦਾ 1/3 9 ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਕ ਉਲਟਾਤੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਨੰਬਰ 35 ਹੈ, ਇਹ ਨੰਬਰ 53 ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅੰਕ ਉਲਟਾਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। देखो इन्हों का डिफरेंस 18 आऊगा, मैं इनिशियली क्यों पिक कर लिया है क्योंकि इन्हों का डिफरेंस 2 है, 2 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ डिफरेंस आ जाऊगा। फॉर एग्जांपल जिमें एक नंबर है जी मेरे को 14, ਇਹਦਾ मैं उल्टा करता 41 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ डिफरेंस कितना आऊगा, बहुत सिंपल है जी, ਇਹਨਾਂ ਦਾ डिफरेंस कितना 3 3 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ 27 आ जाऊगा। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦਾ 1/3 9 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦਾ 1/3 ਜੇ 9 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ 27 ਹੋਊਗਾ। 27 ਨੂੰ 9 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 3 आ जाऊगा। मतलब कि उन्होंने अंक का जो अंतर है वो 3 होना चाहिए। ये ऑप्शन गलत होगी जी, ये ऑप्शन गलत होगी। इन्होंने दोनों का अंतर 3 है। इन्होंने पूछे छोटी संख्या किहड़ी है, दोनों जो छोटी संख्या किहड़ी है 69 है, आंसर है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन इस ट्रिक नाल हो जाते हैं जी खत्म। अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 70। Manish earned a profit of 49% on the first laptop and he sold and suffered a 49% loss on the second laptop. He sold both the laptop in the price ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। what is the net loss or profit in percentage? ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ 49% ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨੂੰ 49% ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਸ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 49 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 100, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 2401 डिवाइड बाय 100 तो 24.01% का लॉस हो गया जी। ऑप्शन ए आंसर बिल्कुल सही है जी। अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन है जी 71 12.5% ऑफ ए नंबर इज 64, व्हाट इज द नंबर। देखो जी 12 किसी नंबर का 1%, क्योंकि 12.5% का मतलब होता है 1/8, किसी नंबर का 1/8 64 है तो 1 कितना होगा 64 × 8 = 512, तो नंबर 512 हो जाएगा। अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन 72 है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी इज 32/25 of the sum if the number of year is numerically equal to the 1/4 of the square of the rate then the rate percentage per annum। देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, जे सम 25 है मतलब कि जे प्रिंसीपल 25 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया जी 32 आएगा, मतलब कि SI कितना आ गया 32। हुण की कह रहे हैं ਆਪਾਂ
ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਟੂ ਆਰ ਇੰਟੂ ਟੀ ਬਾਈ 100। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਅਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ 1/4 ਆਫ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਆਫ ਦਾ ਰੇਟ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ r/4 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 100। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ 3200 ਗੁਣਾ 4 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 25। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ 25 × 25 70 ਬਣ ਗਿਆ, 25 ਦੂਣਾ 50 200 128 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 128 ਗੁਣਾ 4 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 64 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ 4 ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਤਾਂ ਆਰ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਆ ਜੂ, ਇੱਥੋਂ 4 ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 32%। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 73। simplified value of the expression 5 plus 5 of 5 divide 5 minus 13/5। तो सब तो पहला आप बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ऑफ सॉल्व करांगे। तो 5 of 5 होंगे जी 25, फिर आप डिवाइड 5 करांगे, फिर -13/5। तो फिर इन सॉल्व करांगे, ये बन जाऊगा 5। तो 5 + 5 हो गया 10, 10 - 13/5 आप सॉल्व कर लांगे, 50 - 13 37/5 ऑप्शन डी। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਿਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਰੋਂ 5 ਆ ਜਾਊਗਾ, 5 ਨੂੰ 40 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 70 ਆ ਜਾਊਗਾ, -22 + 9 ਤਾਂ 70 ਚੋਂ 22 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 48 + 9 57 ਆਂਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 75। है a shopkeeper bought x banana for ₹y and sold y banana for ₹x। If y greater than x, then find whether he made profit or incurred a loss and find also the value। देखो जी शॉपकीपर ने x बनाना परचेज किते y रुपीज़ ने ते उसने बेचे किवें ने y बनाना बेचे ने x रुपीज़ दे। सब तो पहले अपना काम की है जिहड़े नंबर ऑफ बनाना इन्हां नूं सेम करांगे, तो इनू y नाल मल्टीप्लाई कर देंगे, y स्क्वायर आ जाऊगा, इनू x नाल मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर आ जाऊगा। मतलब कि शॉपकीपर ने y(x) बनाना परचेज किए सीगे y स्क्वायर रुपीज़ दे ते y(x) ही बेचे ने उन्हें x स्क्वायर दे बेचे ने। हुण y बड़ा x तो ये तो हो गया जी CP, ये हो गया SP। तो उन्होंने लॉस होगा जी डेफिनेट है क्योंकि CP ज़्यादा है SP तो लॉस कितना हो गया CP माइनस SP, इन्हें का लॉस हो गया। किहदे पिछे लॉस होया CP पिछे, तो y स्क्वायर नीचे आ जाऊगा, इंटू कर देंगे जी आप 100। ये आंसर आ गया जी अपने को ऑप्शन ए। नैक्सट देखो जी क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन 76 है जी ए सॉलिड सिलेंडर हैज टोटल सरफेस एरिया। एक सॉलिड सिलेंडर है, उसका सरफेस एरिया गिवन है। द कर्व सरफेस इज 1/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। देखो जी TSA गिवन है, टोटल सरफेस एरिया 4158। तो हम की कह रहे हैं कहना ਜਿਹੜਾ कर्व ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ 1/3 ਦਾ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ TSA ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ CSA ਤੋਂ कर्व ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਪਲੱਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਬੇਸ ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ कर्व्ड ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉਹ 1/3 ਹੈ ਟੋਟਲ ਦਾ। मतलब कि जो टोटल 3 होगा तो कर्व सरफेस 1 होगा तो बेस का एरिया 2 होगा। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ टोटल सरफेस गिवन है 4158, मतलब कि 3 की वैल्यू गिवन है, 3 की वैल्यू 4158 गिवन है। आप 2 की वैल्यू निकालांगे, 1 की वैल्यू आ जाऊगी 13 × 3 = 39, 25 आ गया, 3 × 8 = 24, 3 × 6 = 18। 1 की वैल्यू आ गई, 2 की वैल्यू आ जाऊगी, यह डबल कर देंगे, 6 दूनी 12, 1 18 16 16 तो 1 17, 1 6 तो 1 7, 2772 आ गई। जे 2772 आ गई तो आप वैल्यू पता करनी है, ये आ गई सेंटीमीटर स्क्वायर च आ गई। तो आप वैल्यू पता करनी है, आप रेडियस दी, रेडियस होंगे πr², 22/7 r² इक्वल टू 2772। तो 11 तो कैंसल होगा जी डेफिनेटली, 11 9 22, पिछे बच गया 57, 11 5 55, 2 2 2 आ गया। फिर कैंसल करांगे जी उरे आ जाऊगा 12 126, तो r² आ जाऊगा 126 × 7। तो हम मैं चैक करदा जी 7 ये फैक्टर बना के 7 × 7 5 6 7 8 56, 18 × 7 फैक्टर बनते हैं।
7 8 56 5 7 5 12 ठीक है जी। तो 18 आ गया जी उरे। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ 7 9 ਤੇ 2। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਆਈ ਥਿੰਕ। देखो जी की कह रहा है कहता कर्व सरफेस एरिया 1/3 है मतलब कि जी 3 है टोटल सरफेस एरिया था 1 है तो ये 2 होगा बेस का। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द बेस। ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ 4158 है मतलब कि 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ है। ठीक है जी बिल्कुल ठीक है जी क्वेश्चन आप ठीक कर रहे ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ मैं सॉल्व कर ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲ ਲਾਂ ਜੀ ਉਰੇ 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 1 ਸੀ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇ 3 एकम 3 13 3 39 25 बच गया 3 8 24 18 1386 14 41 ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਇਹ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲ ਲਾਂਗੇ 1386 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 2601 ਬਣ ਜੂਗਾ ਤੇ 172 1 2772 ਆ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਇਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ मतलब 2 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ 2772 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ 13 17 ਬਣ ਗਿਆ 2 8 16 1386 ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 22/7 ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 1386 ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 11 ਦੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ 11 एकम 11 28 11 दूना 22 66 आ गया फिर कैंसिल करांगे 63 आ जाऊगा तो अपने को आर स्क्वेयर कितना आ गया 63 गुणा 7 आ गया। इनू लिखांगे जी अपन 9 गुणा 7 गुणा 7 एक तो 3 बाहर आ जाऊगा आर की आ जाऊगा 3 × 7 21 सेंटीमीटर ऑप्शन सेकंड। तो ये सी अपने को 76 अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 77 if the base radius and height of circular cone are 5 and 12 centimeter respectively then the slant height is बिल्कुल सिंपल है जी एक राइट सर्कुलर कोन है ਉਹਦੀ ਆ ਚੀਜ਼ 5 ਹੈ 12 ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ 13 ਆ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ find the least square which is exactly divisible by 4 6 12 and 25 ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ 25 ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ठीक है जी ये कैंसिल होंगे 25 ਤੇ 12 ਦੇ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦਾ 6 ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ 4 ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੌਰੀ 6 ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ 25 ਦੇ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦਾ 12 ਦੇ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਬਚ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 79 क्वेश्चन 79 है ठहरावां ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਚਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੀ ਚਾਲ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਠਹਿਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਦੀ ਚਾਲ 56 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਹੈ ਬੱਸ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਆਊਟ ਸਟਾਪੇਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਕਿਸੇ ਪਲੇਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਟਾਪੇਜ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ 56 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰਦੀ ਹੈ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ। देखो स्पीड की आप रेशो लिखांगे 70 ਤੇ 56 उल्टा कर देंगे जी टाइम की रेशो आ जाएगी 56/70 7 ਦੇ कैंसिल करांगे 8 रेशो 10 आ जाए तो हम देखो जो 56 मिनट है उदों एक ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 आवर चेंज करांगे मतलब कि 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 60 ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 48 ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਜੇ 1 ਘੰਟਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚਾਲ 56 ਤਾਂ ਉਹੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ 70 ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 48 ਮਿੰਟ ਨਾਲ मतलब कि ट्रेन 12 मिनट रुकती होगी ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ 56 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਰੇਸ਼ੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ मतलब ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 80
A can do a piece of work in 4 days, B can do a same work in 8 days. With the help of T, they finish the work in 2 days. मतलब कि ਜਦੋਂ A plus B ਤੇ T ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ T ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਰਕ ਲਊਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 8 ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ A 4 ਦਿਨ 'ਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ A ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 2 ਹੈ, B ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 1 ਹੈ, A plus B plus T ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 4 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਦੀ 2 ਹੈ, B ਦੀ 1 ਹੈ, ਤਾਂ T ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, 1 ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ T ਨੇ 8 ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 8 ਦਿਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ 2 ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੈ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ਲੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਜਲਦੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ SI ਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।